So I think many of you have joined and you are very eager to start. So can every one of you turn on your webcams so that we can see you and just get your expressions more clearly. And we will be starting in 1 more minute. Okay. Okay. So I will be taking names: Vikhyat, Sakshi, Jaspreet, Preeti, Virakshi, Shilpi, Urvashi, Ishan, Arpit, Aisha. Can you just turn on your webcams? सुमित मुझे भी करना है क्या? Yes, Sakshi, if it's possible then. All the best. All the best, everyone. So Aisha, I think we can begin. So hi everyone, I am Aisha and welcome to the Chaotic Quiz National Literary Fest. So welcome to our open mic event.
And I'm Aisha. I'm going to be your host today along with my team members Sakshi and Tanvi. So let's start the event. And our first participant is token number 601, Vidit. Vidit, are you there? Yeah, can you hear me? Yeah, Vidit. Okay, I'm starting. My name is Vidit. I'm gonna start my open mic with the Narcos theme song from Netflix. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el alba que mata dulce. El castillo aturde, yo soy la espada que guarda el caudal. Todo el aire que respiro yo. El dulce no tiene el mar. La carcasta que en su moja que te mauca mi amor. Now I'm gonna sing the Bella Ciao from La Casa de Papel, Money Heist, same Netflix. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e tu hai tolto l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, oh atterrando, ci mi sento di morire. Lastly, I'm gonna sing a small stanza from Bekhayali, the Kabir Singh song. रातें देंगी बता नींदों में तेरी ही बात है भूलूं कैसे तुझे तू तो ख्यालों में साथ है बेख्याली में भी तेरी ख्याल आए क्यों बिछड़ना है जरूर ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी से फासले भी तेरे बेहिसाब आए. Thank you guys. Thank you team TCQ. Thank you Sakshi. Thank you so much, Vidit. That was an amazing performance. Thanks, Tanvi, Vidit. are you there? Yeah, can you hear me? Yeah. Okay, Vidit. So that was an amazing performance, and okay, congratulations. And next is token number 602, Syed Mohammed Waheed. Syed Mohammed Waheed, are you there? I think he's not there. Okay, so now Jasprit Singh, 603. Yes, hello. Am I visible? Okay. Yeah, you're visible. Okay. Okay, hi Jasprit. You can start. ओके तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी. Yes, आपकी आवाज क्लियर आ रही है. ठीक है. तो मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जैसा आपने बता ही दिया और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और घर में सबसे छोटा हूँ. तो लॉकडाउन के समय से पहले यानी कि 2020 से पहले जो घर में मेरे हालात हुआ करते थे गर्मी की छुट्टियों में उस पर कुछ पेश कर रहा हूँ.
मुझ पर सबका बस चलता है, छोटा होना एक सजा। सारा घर ही रोब जमाए, जिसको देखो ऑर्डर है। देखो बाहर बेल बजी है, सब्जी भी लाने वाली है। लगता है शायद आ गई आंधी, छत से कपड़े ले आ छेती। फिर भी ये कहते हैं सारे, तेरी तो चांदी मैं ही अपने है। आप आ जाऊंगा, मेरे को ना खुशियों बुलाओ। की मौजें ही मौजें कर ले तू जी भर के ऐसे। 24 घंटे का ताना है, छोटा होना एक सजा। डैडी सुबह सवेरी आके पूछे, कच्ची नींद जगा के। उठ जा, बिल है जमा कराना, पेंशन भी है लेने जाना। किससे फोन पे अद्धी राती लगा रहता गली बाती। फिर दिन भर सोया रहता है, छोटा होना एक सजा है। वापस आकर बैठा ही था, इंटरनेट का सोचा ही था। भाई प्यार से आकर बोला, चल पहले गाड़ी ही धो ले। मिलकर दोनों धोएंगे, हार्डली 15 मिनट लगेंगे। पाइप और कपड़ा पकड़ा दे, बस थोड़ी सी हेल्प करा दे। इधर मैंने पाइप लगाया, उधर उसका मैसेज आया। इधर मैंने पाइप लगाया, उधर उसका मैसेज आया। समझो किस्मत ही माड़ी थी, बस फिर मैं था और गाड़ी थी। बम्पर देखकर चमकाया है, छोटा होना एक सजा। पहले सोचा बात ही ले लूं, फिर ये गंदे कपड़े बदलूं। याद अचानक फिर ये आया, आज तो 2020 भी था। जस्ट था मैंने टीवी खोला, दूजा ओवर ही था देखा। मासी फौरन आकर बोली, पहले मेरे को छोड़ा अकेडमी। तेरा कितना वक्त लगेगा, मैच पड़ा है 10 ओवर का। तौबा, अपना हुलिया देखो, जाकर गंदे कपड़े बदलो। कम से कम मुंह ही धो लेते। कब से हो तुम वेले बैठे, मिट्टी से टी शर्ट भरी है, आखिर ऐसी क्या सुस्ती है। मनपसंद सा तेरा हुलिया है, छोटा होना एक सजा। थैंक्स लॉट, यही था जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जसप्रीत, बहुत ही अच्छा लिखा था आपने। थैंक यू। um, And I guess ne- the tone in which you were, you know, reciting the poem, it was quite amazing. और जो एक flow बना रहना चाहिए ना poem में, वो बहुत अच्छे से represent किया था आपने. So thank you so much for joining this. अरे थैंक यू जी। आपने काफी तारीफ कर दी। No, that was, you know, you deserve all the appreciation. जी एक्चुअली आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। ओके, तो नेक्स्ट अप वी हैव अर्पित, टोकन नंबर 604। अर्पित Yes. जी, हाय अर्पित। So, hi. So, good evening, guys. My name is Arpit and मैं आपको आज एक पोएट्री सुनाना चाहूँगा। So, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक तरफा प्यार, और इससे काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे भी। जो है मतलब ये ऐसी चीज़ है जो 100 में से 90 को होता ही होता है। सो मेरे पोएट्री का नाम है मैं, तू और वो। मतलब मैं, मेरी क्रश और उसका बॉयफ्रेंड। हाँ, सुनने में थोड़ा दुखदायक है लेकिन ओके। सो सुनिएगा। तुम्हारे लिए ताज के दीवारें कुछ हमें भी बनाने देना। तुम्हारे लिए ताज के दीवारें कुछ हमें भी बनाने देना। पूरा नाम उसका होगा पर थोड़ा मेरा भी होने देना। तेरे कांधे पर सर रखकर सोने का हक सिर्फ उसे ही देना। तेरे कांधे पर सर रखकर सोने का हक सिर्फ उसे ही देना। बस कहीं दूर से तुझे देख पाऊं, ये हक तो मुझे दे देना। तेरी दुनिया में मसीहा बनके राज भले उसे ही करने देना। तेरी दुनिया में मसीहा बनके राज भले उसे ही करने देना। और मुझे गुलाम बनके ही सही, पर इस दिल का इलाज तो करने देना। एंड द नेक्स्ट लाइन ये थोड़ी चीजी है, लेकिन कैसा है, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहां पे चीजी वगैरह कुछ नहीं होता। सो सुनिएगा। वो तुम्हें अपनी जान समझे, ये सदाकत उसे ही करने देना। वो तुम्हें अपनी जान समझे, ये सदाकत उसे ही करने देना। और मैं तुम्हें अपना भगवान समझूं, ये हरकत तो मुझे करने देना। एंड तेरी बदन की लिखावट भले उसे ही करने देना। तेरी बदन की लिखावट भले उसे ही करने देना। और मुझे मेरे मन में ही सही, बस तेरी रूह और मेरी रूह एक हो जाए, ऐसी मिलावट तो करने देना। एंड द लास्ट लाइन, वो डूबता होगा तेरी आंखों में रोज। वो डूबता होगा तेरी आंखों में रोज। मुझे भी एक बार डूबना है। मुझे भी एक बार डूबना है। तू अपनी नहीं है, फिर भी तुझी को अपना बनाना है।
और बीच में मैं इन थोड़े चीजों से ऊपर उठ गया था, तब मैंने एक 2 लाइनर लिखी थी उसी के लिए। दिस इज लास्ट वन। सो तेरी बंदिशों से बंदगी तक पहुंच चुका हूं मैं, तेरी बंदिशों से बंदगी तक पहुंच चुका हूं मैं, पर तुझसे नहीं ये बंदगी मेरी जिंदगी से कर चुका हूं मैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्पित, वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है एंड थैंक यू, काफी अच्छे से आपने रिसाइट भी किया। थैंक यू, थैंक यू। Okay, so next we have Reena Kadam, token number 605. Reena Kadam. Reena, token number 605. I think she's not here. So token number 606, Rizvi. Rizvi Lubaba. Okay. Next is token 607, Nirabra Neel. Nirabra, are you there? Okay, token number 608, Dr. Soumya Goyal. Dr. Soumya Goyal. Okay, token number 609, Rahul Singh. Yes, ma'am. Here. Ji, hi Rahul. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. And am I clearly audible to you? Ji, Everyone. aap audible hai. Okay, ma'am. So I'm going to recite a poem that is related to life. We know that our life is full of ambiguities and we don't know that at what instant what might happen to us. So on the basis of this only, to throw light on different aspects of our life, I have a poem which is titled Anomalous Life. So I'm beginning. Life is bustling with ambiguity, hence we eradicate them with agility. Fear often exacerbates the situation, hence we gear up to tackle it with affection. Exuberance dilutes the severity of negativity, hence we lamb into the same to the best of our ability. We apprehend the deleterious situation of our greed, nevertheless attempt to consider it our daily need. We always pine for disporting ourselves in happiness, but this unluckily chumps out negative impacts of gloominess. We always pine for emotions drew over various aspects of life, and inside on bringing reality relates to the into limelight. Tough times have it right, tough times inside just to make our inside strength bright. Sadly, we lash out against it and hit out our might. Failure comes and infuriates every one of us, thanks to which it engenders lots of fuss. We keep grumbling about the severity of difficulty and soul of Almighty without any loyalty. Life seems a bubble with unavoidable flaws, and this happens when we violate nature's law. Always glance at the crust of our friendship. It is because this is the only way by which we can get rid of all sorts of predicament. Thank you. Thank you so much, Rahul. बहुत ही अच्छी poem थी, and I really loved it. It was a great Thank you, ma'am. performance. Okay, thank you, And ma'am. also, I would like to mention something. A poem is, the perfect one when you use the correct intonations and stress. So Yes, ma'am. you used it quite well, and it was very, very amazing. So thank you so Okay, much thank for you. joining. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Rahul. Next up, we have token number 610, Karishma Khan. Karishma Khan. Okay. 611, Vidyat. जी मेरी आवाज आ रही है जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है मैं विख्यात द्विवेदी IITBSU वाराणसी का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सम्मुख मेरे द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है भोलेनाथ। कविता इस प्रकार है।
सुनो ना नाथ ये पुकार वेदना, न झूठ है न झूठ बोलता कि प्रेम भावना अटूट है। 1008 नाम तो लिखे रखे अनन्य है, सुने कभी हरा ये तो हुए विराट धन्य। न भक्ति है न ही गणेश सा मुझे दिमाग है, न शक्ति है न ही शिवाय सा मुझे विराग है। बिना महेश के शिवा, शिवा बिना महेश क्या, अघोर नाथ भस्म से समस्त विश्व ये बना। बना धरा महेश्वराय विश्वनाथ हो गए, बनारसी बनी शिवा सभी सनाथ हो गए। अपार नाथ को कभी न कोई पार पा सके, करोड़ दिव्य ज्ञानियों समान हार जा सके। 1000 साल साधना न बार बार हो सके, शिवा समान प्रेम न अनेक बार हो सके। प्रभु शिवाय हे वराय नाथ बोल दो जरा, कि हो सके न व्यर्थ गीत राज खोल दो जरा। न है मलाल ना विशाल है गमों का साथ, ये सदा करो कमाल और थाम लेना हाथी। हरे शिवाय चंद्रशेखराय कीर्ति दो मुझे, ललाट अर्ध चांद सी अमोघ कांति दो मुझे। विपत्तियां सदा हरो कि नाथ साथ दो सदा, करो दया कृपा हरे की शीश ये झुके सदा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने काफी बहुत ही अच्छे से आपने रिसाइट किया एंड बहुत ही अच्छी थी आपकी पोएम। ओके सो अब जो है तन्वी आप लोगों को होस्ट करेंगी। सो ओवर टू यू तन्वी। Hi guys. Actually, Aisha, I'm hosting from 21 to 35, so Sakshi, we will take over. Okay, Sakshi ji? Yeah, sure. Hello, so I will start from the token number 612, Asmi. Asmi? Is she there? No, Sakshi, we can move forward. Okay, sure. So 613, Anshika Dhingra. Anshika, she's also not there. Okay, 614, Preeti. Preeti. Yeah. Hello, hi. Hello everyone. Hi. Okay. Yes. Hello everyone. My name is Preeti Maurya and मैं एक हिंदी पोइट्री बोलना चाहती हूँ. So basically it's a poetry. जब हमें जब रिलेशनशिप में इग्नोरेंस आ जाता है तो हमें मूव ऑन करना होता है, बट इट्स नॉट इजी टू मूव ऑन, बट वी हैव टू. तो ये पोएम उस इंसान की तरफ से है जो मूव ऑन कर रहा है उस इंसान से जो इसको इग्नोर कर रहा है. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट. ढूंढ लिए हैं मैंने तुझसे दूर रहने के बहाने, ढूंढ लिए हैं मैंने तुझसे दूर रहने के बहाने. जरूरत नहीं है अब तुझे बैठने की मेरे सिरहाने. दूर नहीं रह सकती थी ना यही थी मेरी मुश्किल, दूर नहीं रह सकती थी ना यही थी मेरी मुश्किल. मिल गया है मुझे तरीका और अब संभल भी गया है ये दिल. भागती थी मैं तेरे पीछे, भागती थी मैं तेरे पीछे, पर अब रुकने पर मजबूर हो गई. नहीं रहा अब प्यार तुझे ये सुनकर खामोशी से दूर हो गई. रातों में अब बातें नहीं होती, रातों में अब बातें नहीं होती. अंधेरे पर सब आंसू छुपाते हैं, सुबह की तो बात ही नहीं करती, वो भी अब बेवजह से लगते हैं. ठोकर तुझे लगी थी पर ये मैं गई, प्यार तुझे हुआ था मुझसे तो इश्क में तुझे ही रोना चाहिए था. ठोकर तुझे लगी थी पर ये मैं गई, प्यार तुझे हुआ था मुझसे तो इश्क में तुझे ही रोना चाहिए था. पर हर बार आंसू मेरी आंखों में आए क्योंकि मैंने तुझे वहां भी नाराज होने का हक दिया जहां मुझे होना चाहिए था. अब ये टूटा दिल लगा है मुझे थोड़ा बिखेरने थोड़ा संवारने. अब ये टूटा दिल लगा है मुझे थोड़ा बिखेरने थोड़ा संवारने. और सुन ढूंढ लिए हैं मैंने तुझसे दूर रहने के बहाने. शुक्रिया. वाह प्रीति, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा. एकदम हम रिलेट कर सकते हैं जैसे आप बोलते हो.
थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जाते हैं 615 मोहम्मद तारिक। Is he here? I think he is not here. Okay. So next is Avni 617. All the best, Avni. Hello, am I visible? Yeah, Can you you're see me? visible. Yeah, you're visible. ठीक है. Okay, तो wait a second. I think it's Muhammad Akmal. oh, Okay, so yeah. Okay. So 616 Muhammad, then after that Avni you can do, okay? Yeah, wait. Muhammad Akmal. Can you hear me? Yeah. Okay. You can start. मैं गजल पेश करने जा रहा हूँ। जज्ब होते हुए आंसू की कहानी लिखना, जज्ब होते हुए आंसू की कहानी लिखना, उनके अंदाज में उनके अंदाज बयानी लिखना। वो हमेशा मुझसे कहती थी मेरे हमदम, वो हमेशा मुझसे कहती थी मेरे हमदम, मुझे जब भी लिखना रात की रानी लिखना। पन्ने उलट रहा हूँ मैं जिंदगी के अपने, पन्ने उलट रहा हूँ मैं जिंदगी के अपने, उसने कहा था मेरे बाद हमारी कहानी लिखना। अपनी गलती से ये कहती थी यही लहजा है मेरा, अपनी गलती से ये कहती थी यही लहजा है मेरा, मेरी गलती को हमेशा मेरी नादानी लिखना। गुजर जब भी होता है माजी की गलियों से, गुजर जब भी होता है माजी की गलियों से, दिल ये कहता है कि इन गलियों की कहानी लिखना। अकमल की सारी मोहब्बतें इससे इश्क है, अकमल की सारी मोहब्बतें इससे इश्क है, जिक्र मोहब्बत का हो तो मेरी मोहब्बत से मोहब्बत की कहानी लिखना। बहुत खूब अकमल, बहुत अच्छा था। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। ठीक है, now Avni, you can start. okay. Am I visible? Yeah, you are. Okay. So hi, my name is Avni Narayan. And मैं एक गाना गाना चाहूँगी which is called Take on Me. ये 80s का गाना है जिसका बहुत फास्ट वर्जन आपने बहुत क्राउड प्लेसेस में सुना ही होगा, but I'm singing an acoustic version of it which is guitar based. So we're talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day. I'm to find you shining away. I'll be coming for you. I'm okay. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or so, needless to say, of odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me, take me on, take on me, I'll be gone in a day or two.
much. beautiful, Thank you. amazing, loved it. I felt like it shouldn't stop. It Thank was you for having me. Thank you so much. Thank you, thank Sakshi. you. All the best. Thank you. Okay, so Bye. the next participant, by the next participant is 18, Priyasha Rath. Priyasha, is she there? Okay, I think she's not there. Yeah. Next is Saumil Jain. Saumil is also not there. Next is 620 number Lavanya. Am I audible and visible? Yeah, Lavanya, yeah, you can start. Yeah, All the okay. best. Thank you. And first of all, thanks a lot for having me here. Okay, so the poetry that I'm going to perform today, it's called as I Had to Let You Go. Okay, so I'll start. I had to let you go, like the trees that let its leaves fall. For I'm soaked in my own pipeline with a vegetative mind that is ready to accept none. I had to let you go, like the dusk that gives way to dawn, because I'm slackened by the happenings around that I don't find the zeal to embrace you. I had to let you go, like the as I'm writing the new chapter of my story, with the promise of finding new characters and the story that would mold me, break me, and make me a lone warrior at the fag end. I'm sorry, darling. There's a loud lament inside my native soul that gets silenced before the word, for the latter fears the arrow of affliction. It's often the dark emotions that makes us a poet. It's the quivering hands that write the unthinkable. It's the paper of a blood-soaked fist that creates the legacy. So am I, darling, who's changing your history, your lovable soul, who's changing your life. Even if this poem reaches up to you, it would still be a facade. Just like how most of the poets are seasoned liars who did their art to save their heart, so am I, darling, who's covering her inner emotions with metaphors, her feelings with the simile, and the ballad into a sober poetry, for she believes that letting someone go would place her in a placid grave with zilch regrets and tension. I wish, I wish I could tell you how much I yearn for your love, but sorry, I have to let you go. Thank you. Thanks a lot. Really nice. It was beautiful. We loved it. And all the best. Thank you. Lavanya. Thank you. Yeah, so the next is 621 Said Urfi Nayab. कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी थामा करोगा इसको किसने ना ये तो बता पानी कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी Thank you so much. So Yakni, it was a really beautiful song, and you know your voice is seriously amazing, and the notes that you took, they are of I was literally sitting here and I felt like dancing. You gave us goosebumps. Thank you so much, Your voice Tanvi. is Thank you. Thank you so much. okay. Okay. Thank you. Thank you so much for joining. Thank you. Okay. So next we have 125, Dr. Priyanka. Dr. Priyanka, are you here? Hello, Yeah. am I audible? Yes, you are. Hello, guys. My name is Priyanka. I'm a doctor by profession. और हमारी रोज की प्रैक्टिस में हम कितने भी आगे चले जाएं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हमें देखने में मिलते हैं तो हमेशा उनमें एक होता है कि बेटा चाहिए हमें उस वजह से मैंने एक पोयम लिखी है एंड मैं उसे शुरुआत करती हूँ समाज ये तेरे कैसे उसूल इस पोयम का एक शीर्षक है मैं पूछती हूँ इस समाज से ये तेरे कैसे उसूल है
क्यों बेटी के लिए सारी पाबंदी और बेटे के लिए खुला आसमान है? बिगड़ जाए बेटा तो रोक टोक बेटी पर होती है, क्यों उसकी पहचान एक कपड़ों से होती है? बेटे खुले आसमान में नशा करे पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन बेटी संस्कारी रहे ऐसी उम्मीद हर घर से आती। कैसे उसूल है तेरे भेदभाव से भरे, बेटा चाहे कुछ भी कर ले, गर्व माँ बाप को होता है, पर जनाब बुढ़ापे का सहारा बेटा कहाँ बन पाता है? फिर भी उंगली उस बेटी पर उठती जब लड़का उसे सताता है। कुछ भी हो जाए हर हाल में दोष बेटी का होता है। चाहिए हर घर में बस बेटा जो बन जाए घर का चिराग। आसमान तो बेटियां भी छू रही है, माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। हर मुश्किल का सामना करती, मेहनत से कामयाबी को छूती। क्या कुछ नहीं करती, लेकिन अग्नि परीक्षा बेटियों के हिस्से में ही लिखी जाती। समाज ये गलती बार बार दोहराता, बेटे को सर का ताज बना देता। बदल दो इस कानून को, बेटियों को भी घर का चिराग बनाओ। खुला आसमान उनका भी है, जहाँ चाहे वो घर बनाए। थैंक यू। It was a really beautiful poem. It's like कि हाँ कि ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में जिन पर मतलब बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता, तो ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी होती हैं और टेकिंग सच टॉपिक्स इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पार्ट। So thank you so much. Thank you. So next we have 126. It's Yugam Pratap. Yugam, are you here? Okay, so we can move on to next. It's 127. Himani. Himani, are you here? Okay, 128. Virakshi. Virakshi, are you here? 129. Sanjay Kumar. Hello. Hello, sir. Are you hearing me? Yeah, sir. Go ahead. जी, मेरी ये गजल नमन है शहीदों को। वो तिरंगे में लिपटे घर आ रहे हैं, वो तिरंगे में लिपटे घर आ रहे हैं, खून में लथपथ जिस्म कर आ रहे हैं। वो तिरंगे में लिपटे घर आ रहे हैं, खून में लथपथ जिस्म कर आ रहे हैं। सरजमी अपने लहू से लाल करके मौत के मतवाले इधर आ रहे हैं। उनके चेहरे का नूर तो देखो तुम भी, खुद फरिश्ते लगता उतर आ रहे हैं। देश की खातिर जान अपनी गवा के वो शहीदों में नाम कर आ रहे हैं। उनके घर आंगन करने रागीर रोशन, खुद उजाले चलकर इधर आ रहे हैं। चंद गजलें आज के हालात को देखते हुए। वक्त ऐसा भी आएगा इंसान को खाएगा, वक्त ऐसा भी आएगा इंसान को खाएगा। काल के ऐसे चक्कर से कोई कैसे बच पाएगा। रिश्ते नाते अपने मेरे नाम के बस रह जाएंगे, रिश्ते नाते अपने मेरे नाम के बस रह जाएंगे। हर कोई मतलब से ही अपने को अपना कहलाएगा। धर्म के रक्षक धर्म के नाम पर सब कुछ लूटेंगे, धर्म के रक्षक धर्म के नाम पर सब कुछ लूटेंगे। उनके ऐसे कर्तव्य से हर कोई बेबस हो जाएगा। खून में लथपथ होके इंसान लहू तक पी जाएगा, खून में लथपथ होके इंसान लहू तक पी जाएगा। खून से खेलेगा वो होली, लहू में नहलाएगा। सोचा ना था रागिर ऐसा भी कोई दिन आएगा, सोचा ना था रागिर ऐसा भी कोई दिन आएगा। मौत का मंजर देख हर कोई खुद को बहलाएगा। अगर टाइम हो तो चंद इशारों और पेश करूं। Yeah, sure, sir. Go ahead. रास्ते खुद तलाशेंगे मंजिल मेरी, रास्ते खुद तलाशेंगे मंजिल मेरी। माँ के कदमों में जो सर झुका लूं जरा, रास्ते खुद तलाशेंगे मंजिल मेरी।
माँ के कदमों में जो सर झुका लूं जरा, चैन मुझको मिले और मिले हर खुशी, चैन मुझको मिले और मिले हर खुशी, माँ के आंचल में सर जो छुपा लूं जरा, दर्द सारे बुला दूं मैं एक बार में, दर्द सारे बुला दूं मैं एक बार में, माँ के हाथों से मरहम लगा लूं जरा, जब कभी भूख मुझको सताए बहुत, जब कभी भूख मुझको सताए बहुत, उस घड़ी माँ के हाथों से खा लूं जरा। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. It was really amazing and beautiful. And the way you represented it, it was, something out of purity. So, yeah, thank you so much for joining. Thank you. Okay. So, next we have 130. It's Ishan Gupta. Hi everyone. सर ने भी माँ पे गाना गाया था, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट ऑन द नोट विद माँ। कहते हैं जिस पर रहमत हो खुदा की, जिस पर रहमत हो खुदा की, उसका ये दुनिया फिर भी कुछ बिगाड़ सकती है, पर जिस पर रहमत हो माँ की, उसका खुदा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। थैंक्स। नेक्स्ट इट्स लाइक बेसिकली एक गजल है, गजल नहीं नज़म है, सॉरी। इसका टाइटल है क्योंकि खुदा मुझसे मोहब्बत बेशुमार करता है। लगता है खुदा मुझसे मोहब्बत बेशुमार करता है, क्योंकि हर वो इंसान मुझसे दूर हो जाता है जिसके मोहताज मैं और मेरी खुशियां हो जाती हैं। जिनके साथ रहने की दुआ मेरी दिन की पहली और आखिरी दुआ बन जाती है, जिनकी सलामती की दुआ ही सिर्फ मेरी पहली और आखिरी दुआ बन जाती है। अक्सर एक ख्याल आता है मन में कि किस गुनाह की सजा दे रहा है खुदा मुझे, कि किस गुनाह की सजा दे रहा है खुदा मुझे, उनसे दूर कर कर जो मेरे दिल के करीब मुझसे ज्यादा हो जाते हैं। फिर समझ आता है खुदा कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत से आईना मिला रहा है। खुदा मुझे बार बार यह एहसास दिला रहा है कि दूसरे हैं जरूरी मेरी जिंदगी में, माना दूसरे जरूरी हैं मेरी जिंदगी में, पर कोई नहीं है मुझसे ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी में। है दूसरों की खुशियां भी जरूरी मेरी जिंदगी में, पर मुझसे ज्यादा, मेरी खुशियों से ज्यादा कोई नहीं है जरूरी मेरी जिंदगी में। शायद इसीलिए खुदा हर इंसान को, शायद इसीलिए खुदा हर उस इंसान को मुझसे दूर कर देता है जिसके मोहताज मैं और मेरी खुशियां हो जाती हैं, क्योंकि खुदा बार बार मुझे ये बतलाना चाहता है कि मेरे लिए मैं खुद काफी हूँ, मेरी खुशियां दूसरों के मोहताज नहीं होनी चाहिए। क्या करूं, खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत जो करता है, बार बार मुझे ये बात का एहसास जो दिलाता है। थैंक्स, दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच ईशान। आपने जिस तरह से इस पोएम को फ्रेम किया है, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई रियली लाइक द कंक्लूजन, वॉट एवर यू कंक्लूडेड फ्रॉम दिस. So the last lines were really very beautiful and provoking. So thank you so much for Thank you so much. Yeah. So next we have, it's 131, Subra. Hello, good evening. Am I Hi. audible? Yes, you are. Okay. Shall I start? Hello. Yeah, sure. Go ahead. Yeah, sure. नमस्कार, आदाब, शबक है। मैं सुब्रा शतहदा आज खुले जज्बातों की इस महफिल में एक कविता सुनाने आई हूँ। गुड़िया, हो सके तो इसे अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुनिएगा, क्योंकि शायद कुछ जज्बात बदल जाए। हाथों में उसके सफेद सी गुड़िया, हाथों में उसके सफेद सी गुड़िया, खोल के बैठी है वो अपने अरमानों की पुड़िया। है उसके कई दोस्त, है उसके कई दोस्त, पर लाल साड़ी में लिपटी ये सफेद सी गुड़िया है बहुत खास। ना आने देती है किसी को भी उसके आसपास। कभी उसके माथे पे लाल बिंदिया सजाती, तो कभी उसे रंग बिरंगी चूड़ियां पहनाती। हमारी 5 साल की बिंदिया, जी हाँ, हमारी 5 साल की बिंदिया की आदत है वो गुड़िया। उसकी नादानी, उसकी बचपन, उसके मासूमियत की पहचान है वो गुड़िया। अक्सर उसे दुल्हन सा सजाती,
माँ से चुराई गई उस लाल चुन्नी से उसके लिए कपड़े बनाती। 16 श्रृंगार भले ही न जाने हमारी बिंदिया, 16 श्रृंगार भले ही न जाने हमारी बिंदिया, पर जब भी अपनी नन्ही कलाइयों से अपनी गुड़िया को सजाती, देखने वाले को बड़ी मनमोहक लगती। पर आज देखकर ये नजारा कुछ सहमी हुई है मेरी रूह, पर आज देखकर ये नजारा कुछ सहमी हुई है मेरी रूह। क्या कभी हो पाएगी हमारी नादान मासूम सी बिंदिया अपने वजूद से रूबरू? सच कहूं तो हमारी बिंदिया किसी गुड़िया से कम नहीं, पर कभी सजेगी वो भी दुल्हन जैसी, ये सोचना तक इस समाज को गवारा नहीं। आखिर है तो वो एक तवायफ की बेटी, आखिर है तो वो एक तवायफ की बेटी, ये समाज उसे सपने देखने का हक कहाँ देती। तोला जाएगा उसके जिस्म को कभी, बड़ी सख्ती से तोड़ा जाएगा उसके मासूमियत को कभी। ना जाने हमारी बिंदिया, ना जाने हमारी बिंदिया, उसने इस नर्क में एक स्वर्ग है सजाया, पर इन जिस्म के लालची जानवरों ने उसके माँ को अपना गुलाम है बनाया। हाँ है वो एक तवायफ की बेटी, हाँ है वो एक तवायफ की बेटी, पर सपने देखने का हक उसे भी है। मत तोलो उसे जिस्म फरोशी के इस बाजार में, क्योंकि जिंदा रहने का हक उसे भी है। हमारी 5 साल की बिंदिया और उसकी प्यारी गुड़िया पूछे ये सवाल आप सबसे, क्या आप भी उसके वजूद को परे रखकर जीने देंगे उसे पूरे हक से? क्या आप कीचड़ में खिले इस कमल को तराशेंगे उसके वजूद से? हमारी 5 साल की बिंदिया और उसकी प्यारी गुड़िया पूछे ये सवाल आप सबसे। धन्यवाद। Subhra, it was really, really amazing. And your voice is really very sweet. And the deep message that you conveyed through this poem. And the way, the two characters that you took to represent this message, the doll and the girl. So it was really, I found it quite amazing that how you represented Thank it. you so much. Really beautiful. So thank you. Subhra, the last time you performed, you gave us Yes. goosebumps, Yeah. and the goosebumps remain constant even this time. Okay. Thank you so much. That's what I wanted actually. Thank It you was so too much. good. Thank you. Thank you so much. Yeah, exactly. So now we have 132. It's Dania, or I don't know the correct pronunciation. I'm sorry. Daniya. Are you here? Okay, so we can move on to next. It's 133 Sanawar. If I'm again correct with the pronunciation. 133. Are you here? Okay, 134 Urvashi. Yes, ma'am, I'm here. Okay, you can start. Can you please? Visible? Oh, yeah, you are. Just a second. Actually, I have to. Yeah, all right. So, hello everyone. This is Urvashi Sharma. So, today I'm going to present a poem जिसका शीर्षक है जिंदगी. So, please ignore my mistakes and background as well. So, starting up with my poem. So, please enjoy. All right. जिंदगी. जिंदगी कांटों का सफर है. जिंदगी कांटों का सफर है. हौसला इसकी पहचान है. हौसला इसकी पहचान है. जिंदगी कांटों का सफर है. हौसला इसकी पहचान है. रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है. जिंदगी क्या है? जिंदगी जिंदगी क्या है? अपनी माँ की गोद में सबसे पहले आंखें खोलना जिंदगी है. उसके चेहरे को सबसे पहले देखना जिंदगी है. उन नन्हे नन्हे पैरों से डगमगाते हुए संभलना जिंदगी है. वो नम सी आंखें लेकर कंधे पर स्कूल का बस्ता टांगे पहले दिन स्कूल जाना जिंदगी है. और इस दुनिया में एक अपनी नई सी पहचान बनाना जिंदगी है. वो सबसे पहले दिन स्कूल में जाके नए नए दोस्तों से मिलना जिंदगी है.
अपने पैरों पे चल के कुछ बनना एक जिंदगी है। अपने माँ बाप को अपनी सैलरी से सबसे पहले कुछ देना जिंदगी है, और उनके लबों पे उस मुस्कुराहट को महसूस करना एक जिंदगी है। इस छोटी सी दुनिया में अपना कुछ बड़ा सोचना एक जिंदगी है। अपने आप को सबसे बेहतर कर दिखाने की वो जोश जिंदगी है। सबसे पहले खुद को एक पहचान देना एक जिंदगी है। और देखा जाए तो इन छोटी छोटी खुशियों में ही एक नई सी बड़ी सी खुशी को महसूस करना ही जिंदगी है। अब अपनी आखिरी लाइनों पे थोड़ा खास तवज्जो चाहूंगी कि ख्वाबों के आशियाने को रोशन करके तो देखो, ख्वाबों के आशियाने को रोशन करके तो देखो, बिना शराब के नशा करके तो देखो। ख्वाबों के आशियाने को रोशन करके तो देखो, बिना शराब के नशा करके तो देखो। माना कि ये दिल एक दिन धड़कना छोड़ देगा, तुम मौत से पहले जिंदगी जी कर तो देखो, तुम मौत से पहले जिंदगी जी कर तो देखो। एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपने आप को एक विराम देना चाहूंगी कि जिस चीज की तलाश मंजिलों से थी, जिस चीज की तलाश मंजिलों से थी, वो सुकून ये सफर दे गया। जिस चीज की तलाश मंजिलों से थी, वो सुकून ये सफर दे गया। जिस दिल की तलाश सालों से थी, वो एक लम्हा अपने साथ ले गया। जिस सुकून की तलाश मंजिलों से थी, वो सुकून ये सफर दे गया। जिस दिल की तलाश सालों से थी, वो एक लम्हा अपने साथ ले गया। तो क्या हुआ कि नींद में देखे ख्वाब पूरे नहीं होते? तो क्या हुआ कि नींद में देखे ख्वाब पूरे नहीं होते? ख्वाबों को अपना बनाना हकीकत ने सिखाया है। ख्वाबों को अपना बनाना हकीकत ने सिखाया है। तो क्या हुआ कि नींद में देखे ख्वाब पूरे नहीं होते? ख्वाबों को अपना बनाना हकीकत ने सिखाया है। क्योंकि जिस चीज की तलाश हमें जिंदगी से थी, जिस चीज की तलाश हमें जिंदगी से थी, उसे किस्मत ने हमसे वफा करके चुराया है। उसे किस्मत से हमने वफा करके चुराया है। शुक्रिया। Urvashi, you were too good. It was such a powerful performance, and your intonations were, perfect. And you said something in the starting that if I make any mistakes, please ignore my mistakes. So I didn't find any mistake as such, and your performance was really great. So वो जो mistakes होती है वो उस time पे बहुत कम हो जाती है जब आप इतना अच्छा perform करते हो तो. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for appreciating. I'm sorry. It's okay. It's okay. Okay, so now we have our last participant. It's 135 Shilpi. Hello. Hello. Hi. So my name is Shilpi and basically I write on social issues. तो आज मैं जो पोएम सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है जननांग, नो अबाउट FGM। तो शुरू करती हूँ। हद, यू नो लिमिट किसी चीज की नहीं होती, ना उकूबत की, ना मोहब्बत की, ना दरिंदगी की, ना ही इंसानियत की। अब दरिंदगी की हद तुम आसिफा कहो या निर्भया, वो 8 महीने की बच्ची कहो या हथरस की बेटी, क्या फर्क पड़ता है? ये तो फिर भी जिंदगी के कितने कुछ ही पन्ने हैं, बाकी तो चलते फिरते या तो कफन हो गए या जिंदा रहते थमी सांसों के साथ दफन हो गए। So जैसा कि मेरा टाइटल है जननांग, नो अबाउट FGM, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट FGM इज। FGM दैट इज फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, एक ऐसी प्रथा जहां पर लड़कियों के जननांग दैट इज जेनाइटल को काट दिया जाता है। रीजन इज रिलीजन, preservation of virginity, marriageability, enhancement of male sex pleasure. And for a surprise, not surprise, for a shock, ये प्रथा बच्चियों पर की जाती है जिनकी उम्र लगभग पैदा होने के बाद से 15 साल की होती है। मतलब 780 करोड़ की इस आबादी में 200 करोड़ अब तक जूझ चुकी इस बर्बादी से। अरे हम मर्दों से क्या खौफ खाए, हम
मर्दों से क्या खौफ खाए जब औरतें औरतों से ही चूर हो गई। रीति रिवाज परंपरा शुद्धता लोग इन सब में ही मखमूर हो गए। अब तो रावण भी शर्मसार हुए। अब तो रावण भी शर्मसार हुए और द्रौपदी भी हार गई। कोई देव नहीं बचा सकते अब यहाँ इंसानियत इंसानियत मार गई। अब इससे ज्यादा क्या कहे। अब इससे ज्यादा क्या कहे। सहते सहते थक गए तुम बता दो कितना सहे। वो कहते हैं कि अंधेरे के बाद सवेरा होता है। सवेरे का तो पता नहीं पर अंधेरे के लिए एक चांद ही दे दो। सवेरे का तो पता नहीं अंधेरे के लिए एक चांद ही दे दो। हमने खुल्द की कामना की ही नहीं बस एक टुकड़ा आसमान ही दे दो। उड़ने के लिए पंख थोड़ी मांगे हैं। अरे उड़ने के लिए हमने पंख थोड़ी मांगे हैं बस सांस लेने के लिए हमें कब्रिस्तान ही दे दो। बस सांस लेने के लिए कब्रिस्तान दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Shilpi. You know, it was really amazing. I literally got goosebumps. और जो इशू आपने उठाया है, राइट? इसके बारे में मैंने थोड़े टाइम पहले ही सुना था एंड आई वाज लिटरली वेरी सैड एंड इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग. सो वो चीज़ आपने अपनी पोएम में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है एंड आई अप्रिशिएट यू ऑन दैट पार्ट. थैंक यू सो मच. Yeah, thank you. So now it's we are finished with the participants. So if anyone is left, it's your last call, and then we'll be soon ending up this session. So just take 2 minutes, and if anyone is left, then you can just continue with the performance.